Assalamualaikum to everyone. Welcome back to Loan Academy. I am Loan Shaukat. Today we will discuss about the last topic in physics, that is the sound. That is sound. This is the chapter number 5 in the class physics, that is the sound. बच्चों, this is the introductory video regarding about the sound. What are the topics जो हमें इस sound के अंदर पढ़ने हैं, ठीक है? ये introductory video रहेगा regarding about the sound. First, all of you know that what is sound. What is sound? A sound, different types of the matter. Steady of the sound is called as acoustics. Acoustics. Remember, steady of the sound is called as acoustics. Acoustics. We say that different types of the matter. When we study the sound, in the different states of matter like solid, liquid or gas, this is called as acoustics. Acoustics. Okay. इस साउंड का यूनिट क्या है बच्चों? दैट इज द यूनिट ऑफ द साउंड इज दैट इज अ डेसिबल, which is denoted by the dB. This is called as a decibel. This is called as decibel. We have the three types of the sound. One that is called as audible sound waves. Next, that is called as infrasonic sound waves, and the third one that is called as ultrasonic sound waves. Sound theory was first published in the 1877 Rayleigh's classical book. Rayleigh's classical book के अंदर एक साउंड साउंड थ्योरी को पब्लिश किया गया था in the 1877. किस बुक के अंदर? in the Rayleigh's classical book. ठीक है, तो साउंड को बच्चों पहले डिस्कवर किया था. साउंड was first discovered by the Edward Leon Scott de Martinville. एक फ्रेंच इन्वेंटर था, इसने साउंड को डिस्कवर किया था in the 1857. ठीक है, this is the general information regarding about the sound. Steady of the sound is called as acoustics in the different formal states of the matter like solid, liquid or gas. At the unit of the sound, that is the decibel, which is denoted by the dB. There are the three types of the sound. One that is called as audible sound, ठीक है, audible sound waves, infrasonic sound waves and the ultrasonic sound waves. Sound theory was first published in the 1877 Rayleigh's classical book. Sound was first discovered by the Edward Leon Scott de Martinville, a French inventor, in the 1857. तो बच्चों, हम पढ़ेंगे कौन कौन से टॉपिक्स हमें इस साउंड के अंदर कवर करने हैं. पहला जो इसमें आएगा दैट इज व्हाट इज साउंड. आपका जो पहला टॉपिक रहेगा इस वीडियो के इस साउंड चैप्टर में वो रहेगा व्हाट इज साउंड क्या है. ठीक है, तो साउंड इज अ फॉर्म ऑफ एनर्जी. जैसे कि हमने पढ़ा था लाइट, जैसे लाइट की एनर्जी होती है, यहाँ पर साउंड की भी क्या होती है? इज अ फॉर्म ऑफ एनर्जी. अब हम देखेंगे कौन सी एनर्जी साउंड को जरूरत पड़ती है. इसके बाद हम इसमें पढ़ेंगे प्रोपोगेशन ऑफ साउंड. ठीक है, तो तीसरा टॉपिक जो इसमें रहेगा दैट इज द प्रोडक्शन ऑफ साउंड को हम कैसे प्रोड्यूस कर लेते हैं. इसके बाद हम पढ़ेंगे व्हाट आर द कैरेक्टरिस्टिक फीचर्स ऑफ द साउंड वेव्स, जिसमें हम पढ़ेंगे फ्रीक्वेंसी पढ़ेंगे, टाइम पीरियड, एम्पलीट्यूड, वेवलेंथ, स्पीड एंड द वेलोसिटी. इसके बाद बच्चों हम पढ़ेंगे इसमें रिफ्लेक्शन ऑफ साउंड. ठीक है, रिफ्लेक्शन ऑफ साउंड, जिसमें हम पढ़ेंगे इको, रिवर्बरेशन एंड द यूजेस ऑफ द मल्टीपल रिफ्लेक्शन. दिस इज द इंट्रोडक्टरी वीडियो regarding about the sound. So we will first discuss the first topic, that what is sound. Sound is defined as the sensation felt by our the hearers. बच्चों, जो हमारे कान सुन पाते हैं, ठीक है, उसे हम क्या बोलते हैं? साउंड. ठीक है, तो there are different types of the sound. जैसे कि आपने देखा होगा सुबह जब हम उठते हैं तो गाड़ियों का शोर हमें मिलता है. ठीक है, व्हीकल्स का शोर, फैक्ट्रियों में मशीनरीज का शोर. there are different types of the sound that are produced by our ears. ठीक है, sensation felt by our the ears is called as sound. जो हमारी कान क्या कर लेती है? फील कर लेती है, तो उसे हम क्या कहते हैं? साउंड. अब सवाल है व्हाट प्रोड्यूसेस द साउंड. साउंड को कौन प्रोड्यूस कर लेता है? ठीक है, A sound is produced by the vibrations. साउंड तब होती है जब वाइब्रेशन प्रोड्यूस होती है. ओके, तो साउंड इज ऑलवेज प्रोड्यूस्ड बाय द वाइब्रेशन. फॉर एग्जांपल बच्चों, यहाँ पर अगर हम गिटार की एग्जांपल देते हैं, गिटार में आप देख लेते हो जैसे कि वहां पर जो स्ट्रिंग्स होते हैं, जब हम अपनी उंगलियों से स्ट्रिंग्स को क्या करवाते हैं? वाइब्रेट कर लेते हैं, एंड साउंड इज प्रोड्यूस. साउंड क्या होता है? प्रोड्यूस. अब यहाँ पर सवाल है व्हाट डू यू मीन बाय द वाइब्रेशन. To and fro motion of a body is called a vibration.
टू एंड फ्रो, टू एंड फ्रो, टू एंड फ्रो का मतलब क्या है, राइट लेफ्ट, राइट लेफ्ट, ठीक है। जैसे कि आपने देखा होगा सिंपल पेंडुलम की बात अगर हम कर लेंगे, ठीक है, वहां पर क्या होगा, या आप क्लॉक की एग्जांपल ले सकते हो, वहां पर जो हमारी वहां पर जो सुई होती है वो क्या कर लेती है, टू एंड फ्रो। तो बच्चों उसी को हम बोलते हैं वाइब्रेशन, ठीक है। टू एंड फ्रो मोशन ऑफ ए बॉडी, एग्जांपल जिसमें सिंपल पेंडुलम की, सिंपल पेंडुलम में जब आप बॉब देखोगे वो क्या कर लेता है, टू एंड फ्रो, टू एंड फ्रो। तो दिस इज कॉल्ड एज अ वाइब्रेशन, दिस इज कॉल्ड एज वाइब्रेशन। सो साउंड इज डिफाइंड as a sensation felt by our ears is called as sound. A sound is produced always by the vibrations. एग्जाम्पल यहाँ पर है गिटार की, जैसे हम वहां पर जो स्ट्रिंग्स होते हैं जब हम उनको मूव करवाते, वाइब्रेट करवाते, a sound is produced. तो वाइब्रेशन क्या होती है, टू एंड फ्रो मोशन ऑफ ए बॉडी इज कॉल्ड ए वाइब्रेशन, ठीक है। टू एंड फ्रो यानी राइट एंड लेफ्ट, ठीक है। वाइब्रेशंस एंड ऑसिलेशंस आर द सेम थिंग। बच्चों अगर हम वाइब्रेशंस की बात कर लेंगे, जिसे अभी मैंने डिफाइन किया था, टू एंड द फ्लो मोशन ऑफ ए बॉडी इज कॉल्ड ए वाइब्रेशन, इज कॉल्ड ए वाइब्रेशन। अगर हम यहाँ पर देखेंगे वाइब्रेशंस और ऑसिलेशंस की ये एक ही चीज है, ठीक है। वाइब्रेशंस एंड ऑसिलेशंस आर द सेम थिंग, आर द सेम थिंग। वाइब्रेशंस ऑकर एट द हाई फ्रीक्वेंसी और द इंटेंसिटी। बच्चों यहाँ पर फ्रीक्वेंसी का कॉन्सेप्ट है, इसको अभी हमने नहीं पढ़ा है, अभी यहाँ पर आप इस फ्रीक्वेंसी टर्म को भूल जाओ, ठीक है। यहाँ पर अगर हम वाइब्रेशंस की बात कर लेंगे, इनमें क्या होती है, हाई इंटेंसिटी, यानी जो यहाँ पे साउंड प्रोड्यूस होता है वो ज्यादा ही होता है एज कंपेयर टू द ऑसिलेशंस। ऑसिलेशंस हैव द वेरी लो फ्रीक्वेंसी, वेरी लो फ्रीक्वेंसी। यहाँ पर जो ऑसिलेशंस होती है अगर हम इनकी फ्रीक्वेंसी की बात कर लेंगे, ठीक है, वो बहुत ही कम होती है। ऑसिलेशंस कैन नॉट प्रोड्यूस द साउंड। अगर हम ऑसिलेशंस की बात कर लेंगे, ऑसिलेशंस नेवर प्रोड्यूस द साउंड। लेकिन यहाँ पर अगर हम वाइब्रेशंस की बात कर लेंगे, वाइब्रेशंस क्या कर लेते हैं, इट प्रोड्यूसेस द साउंड। तो बच्चों जब एक साउंड प्रोड्यूस होता है, साउंड प्रोड्यूस करने के लिए हमारे पास क्या होना चाहिए, एक मीडियम होना चाहिए, ठीक है। जैसे कि लाइट के लिए भी मीडियम होना चाहिए, साउंड के लिए भी क्या होना चाहिए, मीडियम। मीडियम क्या होता है, वो सबस्टेंस जहां से साउंड क्या होगा, पास होगा, प्रोड्यूस होगा। अगर हम अपनी ह्यूमन बीइंग की बात कर लेंगे, जो हमारा मीडियम आता है साउंड का, दैट इज ईयर, दैट इज ईयर, ठीक है। हमारे जो कान होते हैं ये क्या होते हैं, हमारे मीडियमस। किसके मीडियमस होते हैं, साउंड के मीडियमस। तो साउंड का मीडियम होना जरूरी है, क्योंकि तब यहाँ पे क्या होता है, साउंड प्रोड्यूस, ठीक है। तो साउंड का जो मीडियम होता है हमारी ह्यूमन बॉडी में, दैट इज द ईयर, दैट इज ईयर। तो बच्चों हमने स्टार्ट किया था इंट्रोडक्टरी वीडियो अबाउट साउंड। साउंड क्या है, साउंड के बारे में हमने डिस्कवरी भी पढ़ी, डिस्कवरी ऑफ द साउंड, डिस्कवरी ऑफ द साउंड, ठीक है। इसके बाद हमने इसमें पढ़े थे टाइप्स ऑफ साउंड, और ये इंट्रोडक्टरी वीडियो था जिसमें हमने टॉपिक्स कवर किए थे, कौन कौन से टॉपिक्स हमें इसमें पढ़ने हैं। तो हमने स्टार्ट किया था बच्चों साउंड से, ठीक है। हमने साउंड क्या कहा, साउंड इज अ फॉर्म ऑफ एनर्जी विच गिव्स एज अ सेंसेशन ऑफ द हियरिंग, गिव्स एज अ सेंसेशन ऑफ हियरिंग। इसके बाद हमने बच्चों पढ़ा साउंड तब साउंड प्रोड्यूस्ड बाय द वाइब्रेशन, साउंड इज प्रोड्यूस्ड बाय द वाइब्रेशन, ठीक है। अब वाइब्रेशन क्या है, टू एंड फ्रो मोशन ऑफ ए बॉडी इज कॉल्ड ए वाइब्रेशन। वाइब्रेशन और ऑसिलेशन बच्चों एक ही टर्म है, ठीक है। वाइब्रेशन की फ्रीक्वेंसी अगर इंटेंसिटी देखेंगे वो हाई होती है, ऑसिलेशन की जो फ्रीक्वेंसी होती है वो बहुत ही कम होती है। ऑसिलेशन नेवर प्रोड्यूस द साउंड, व्हेयर द वाइब्रेशन प्रोड्यूस साउंड। जब व्हेन अ साउंड इज प्रोड्यूस, जब साउंड प्रोड्यूस होता है तो साउंड को ट्रैवल होने के लिए एक मीडियम की जरूरत होती है। जैसे कि हमारे ह्यूमन बॉडी की बात करेंगे, हमारा जो मीडियम है दैट इज द ईयर, दैट इज ईयर। बच्चों वीडियो अगर अच्छा लगे तो वीडियो को शेयर, लाइक, कमेंट करना, और हमारे चैनल लोन एकेडमी पे क्या करना, सब्सक्राइब। थैंक यू फॉर वॉचिंग।